مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، ہماری آج کی اس ویڈیو میں وہابی مقلدین اور وہابی غیر مقلدین کا ایک ایسا عمل پیش کیا جائے گا کہ جس کو وہابی مقلدین اور وہابی غیر مقلدین دونوں گروہوں کی جانب سے بڑے اہتمام کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور پھر وہی عمل وہابی مقلدین اور وہابی غیر مقلدین کی عبارات اور اصولوں کے مطابق بہت بڑی بدعت قرار پاتا ہے۔ سامعین و ناظرین، ہر سال رمضان المبارک کی 27ویں شب کو ختم قرآن کے موقع پر وہابی مقلدین اور غیر مقلدین دونوں گروہوں کی جانب سے خصوصی طور پر اجتماعی دعا کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ مکہ شریف میں بھی ختم قرآن کے موقع پر اس دعا کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں دور دور سے لوگ شامل ہوتے ہیں، انٹرنیٹ کے اوپر ویڈیوز بھی موجود ہیں، اور پھر وہابی مقلدین اور غیر مقلدین دونوں گروہوں نے اس دعا کو جو ختم قرآن کے موقع پر کی جاتی ہے اپنی کتب کے اندر نہ صرف جائز کہا بلکہ مستحسن اور مستحب قرار دیا۔ دو قسم کے حوالہ جات پیش کیے جائیں گے۔ پہلے مقلدین اور غیر مقلدین وہابیوں کے وہ حوالہ جات پیش کیے جائیں گے کہ جس میں انہوں نے اس دعا کو جو ختم قرآن کے موقع پر کی جاتی ہے مستحب، جائز، مستحسن قرار دیا، اور پھر اس کے بعد وہ حوالہ جات، وہ اصول پیش کیے جائیں گے کہ جن کی روشنی میں وہابی مقلدین ہوں یا غیر مقلدین، ان کا یہ عمل کہ ختم قرآن کے موقع پر اجتماعی دعا کرنا یا انفرادی دعا کرنا بدعت قرار پاتا ہے۔ پہلا حوالہ وہابی غیر مقلدین کا ہے، فتاوی اسلامیہ جلد نمبر اس کی 4 ہے، اور اس فتاوی کے اندر وہابی غیر مقلدین کے متعدد مولویوں کے فتاوی جات ہیں، جن میں سرفہرست عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز اور محمد بن صالح عثیمین، عبداللہ بن عبد الرحمن اور دیگر وہابی مولویوں کے فتاوی جات اس میں شامل ہیں۔ جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 24۔ اسی سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ ختم قرآن کے موقع پر دعا کرنی جائز ہے یا نہیں، لکھتے ہیں لہٰذا انسان کے لیے جائز ہے کہ وہ اس موقع پر جو چاہے دعا کرے، لہٰذا اسے چاہیے کہ وہ ادعیہ نافعہ کو اختیار کرے، مثلا اپنے گناہوں کی معافی مانگے، جنت کا سوال کرے، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگے، فتنوں سے محفوظ رہنے کی دعا کرے، اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے کہ وہ اسے قرآن کریم کا اس طرح فہم عطا فرمائے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو جائے، نیز اللہ تعالیٰ سے قرآن مجید کے حفظ کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق کے لیے بھی دعا کرے۔ جی، صفحہ نمبر 24۔ یہاں پر ختم قرآن کے موقع پر دعا کو جائز بھی قرار دیا گیا، اور پھر یہ مشورہ بھی وہابی مولویوں کی طرف سے دیا گیا کہ وہ کون سی دعا کرے۔ وہ ساری دعائیں یہاں پر وہابی مولویوں نے بتا دی ہیں۔ یہ حوالہ وہابی غیر مقلدین کا۔ اسی طرح وہابی مقلدین کا حوالہ بھی سماعت فرمائیں۔ وہابی مقلدین کا نجم الفتاوی، صفحہ نمبر 189، جلد نمبر 1، لکھتے ہیں ختم قرآن کے بعد اجتماعی اور انفرادی دعا کرنا مستحسن عمل ہے، اور رمضان المبارک چونکہ نزول رحمت کا مہینہ ہے، جبکہ ختم قرآن کا موقع بھی نزول رحمت و برکت کا ہے، لہٰذا اس موقع پر بلا نیت التزام اجتماعی یا انفرادی دعا کرنا نہ صرف جائز بلکہ مستحسن عمل ہے۔ یہ دو حوالہ جات مختصراً پیش کر دیے کہ جس سے بالکل یہ بات واضح ہو گئی کہ ختم قرآن کے موقع پر اجتماعی دعا کرنا نہ صرف جائز بلکہ مستحسن، مستحب عمل ہے، جبکہ وہابی مولویوں نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا، ساتھ میں فری میں وہ دعائیں بھی بتا دیں جو اس موقع پر کرنی چاہیے۔ ان کے بعد وہ حوالہ جات سماعت فرمائیں کہ جس کی روشنی میں یہ عمل جو وہابی مقلدین اور غیر مقلدین دونوں کی جانب سے کیا جاتا ہے کہ ختم قرآن کے موقع پر اجتماعی دعا کی جاتی ہے، بدعت قرار پاتا ہے۔ حوالہ جات پیش کرنے سے قبل ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ دعا ایک عبادت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے الدعاء هو العبادہ،
मुतअद्दिद कुतुब हदीस के अंदर ये रिवायत मौजूद है। खुद वहाबी मुकल्लिदीन और गैर मुकल्लिदीन दोनों गिरोहों के मौलवियों ने इस रिवायत को भी नकल किया। राह सुन्नत के अंदर मौलवी सरफराज खान सफदर ने भी इस रिवायत को नकल किया। बल्कि आदाब दुआ के अंदर तो दुआ को ऐने इबादत करार दिया गया, ऐने इबादत है दुआ। तो इबादत के मुतालिक वहाबी मुकल्लिदीन और वहाबी गैर मुकल्लिदीन के उसूल क्या कहते हैं वो जरा समाअत फरमाएं, फिर आपको मालूम हो जाएगा कि इनका ये अमल कि जिसको ये करते भी हैं जायज भी करार दिया और फिर अपनी कुतुब के अंदर मुस्तहब मुस्तहसन भी करार दिया, ये कितनी बड़ी बिदअत है। वहाबी गैर मुकल्लिदीन के इमाम मौलवी नासिरुद्दीन अलबानी फतावा अलबानिया जिल्द 1 सफ़ा नंबर 281 पर बिदअत का एक उसूल लिखते हैं, कोई भी दुआ या अमल जिसके बारे में कोई हदीस साबित ना हो तो उस पर अमल करना बिदअत है। इसी तरह वहाबी गैर मुकल्लिदीन के ही इमाम मौलवी सनाउल्लाह वहाबी फतावा सनाइया जिल्द 1 सफ़ा नंबर 654 पे लिखते हैं, बिदअत उस काम को कहते हैं जिसको शरीयत ने कार सवाब ना कहा हो और आमिल उस पर सवाब की नियत करे। जाहिर बात है दुआ एक इबादत है, जो भी दुआ करता है इबादत समझ कर करता है, उसको सवाब मिलता है उसके ऊपर। वहाबियों की ही किताब रद्द बिदअत अब्दुल्ला रोपड़ी सफ़ा नंबर 6 के ऊपर लिखते हैं कि जो काम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम, ताबीन और तबा ताबीन से साबित नहीं वो बिदअत है और उसका करना गुनाह है। और इसी तरह यही फतावा इस्लामी है जिसका हवाला पेश किया जा चुका है, जिल्द नंबर 4 पे ही सफ़ा नंबर 29 पे उसूल लिखा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम तिलावत करने के बाद जो ये जुमला इस्तेमाल किया जाता है, बोला जाता है, इसके मुतालिक ये कहते हैं कि ये अल्लाह ताला की सना और उसकी इबादत है, और जब ये इबादत है तो फिर ये जायज़ नहीं कि हम शरई दलील के बगैर अल्लाह ताला की इबादत का कोई तरीका ईजाद करें। और जब इन अल्फाज के कहने की कोई दलील नहीं है तो मालूम हुआ कि इन अल्फाज के साथ ये तिलावत को ख़त्म करना मशरू और मसनून नहीं है। यहां से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि जो भी अल्लाह ताला की इबादत है उसका तरीका शरई दलील के बगैर हम अपनी तरफ से ईजाद नहीं कर सकते, हमें दलील शरई की जरूरत है उसके लिए। ये उसूल फतावा इस्लामिया जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 29 के ऊपर मौजूद है। इन उसूलों के बाद ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि वहाबी मुकल्लिदीन और गैर मुकल्लिदीन की जानिब से जो ये इज्तिमाई दुआ मांगी जाती है खत्म कुरान के मौका पर, ना ये कुरान से साबित है, ना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है, ना ही सहाबा किराम में से साबित है, ना ही ताबीन में से किसी ताबी से साबित है, ना ही तबा ताबीन से साबित है। इनके पास अपने इस अमल की अगर दलील है कि खत्म कुरान के मौका पर नबी रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्तिमाई दुआ मांगी हो, हमें बताया जाए, वो दलील पेश कर दी जाए। सहाबा किराम में से किसी सहाबी ने यह काम किया हो, ये दलील लाएं। ताबीन में से किसी ताबी ने यह काम किया हो, हदीस पेश कर दें, दलील पेश कर दें। तबा ताबीन में से किसी ने यह काम किया हो, ये हमें दलील पेश कर सकते हैं। हमसे सवाल करते हैं, हमसे पूछते हैं कि तुम्हारा यह अमल कुरान की किस आयत में है, किस हदीस में है, किस सहाबी से साबित है, किस ताबी से साबित है। हम भी यह हक रखते हैं कि तुम बताओ खत्म कुरान के मौका पर इज्तिमाई दुआ करना किस हदीस में है, किस सहाबी से साबित है, खुलाफाए राशिदीन में से किसने ये काम किया, ताबीन में से किसने ये काम किया, तबा ताबीन में से किसने किया। तुम्हारा ही ये उसूल है कि जो काम ताबीन से साबित नहीं, सहाबा से साबित नहीं, नबी अलैहिस्सलाम से साबित नहीं और तबा ताबीन से साबित नहीं, वो बिदअत है, उसका करना गुनाह है। लिहाजा तुम अपने उसूलों के मुताबिक, अपनी ही इबारात के मुताबिक अपने अमाल के अंदर बिदअती करार पाते हो। इसके बाद
मसले की बात यह है कि वहाबी मुकल्लिदीन के मुताबिक ये हमें ये ताना देते हैं कि तुम इमाम काबा के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, हरम शरीफ में जाकर इमाम काबा के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। ये मैं पहले अर्ज कर चुका, वहां पर इज्तिमाई दुआ खत्म कुरान के मौका पर मांगी जाती है, खुसूसी तौर पे एहतिमाम किया जाता है खत्म कुरान के मौका पर। जबकि राह सुन्नत वहाबी मुकल्लिदीन के इमाम सरफराज खां सफदर गखड़वी ये क्या लिखते हैं इसी इज्तिमाई दुआ के मुतालिक जो खत्म कुरान के मौका पर की जाती है, सफ़ा नंबर 95 है। लिखते हैं वयकरहु दुआउ इंदा खत्मिल कुरान फी शहर रमदाना व इंदा खत्मिल कुरान बिजमातिन लिअन्ना हाज़ा लम युनकल अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला अन सहाबाती। लिखते हैं रमजान में खत्म कुरान के वक्त दुआ करना और इसी तरह खत्म कुरान के वक्त मिलकर दुआ करना मकरूह है, इसलिए कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत सहाबा किराम रदियल्लाहु अन्हुम से ऐसा करना मनकूल नहीं है, यानी नबी अलैहिस्सलाम से भी साबित नहीं है और सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन से भी साबित नहीं है। और फिर यही किताब सफ़ा नंबर 97 के ऊपर यही सरफराज खां सफदर गखड़वी जो वहाबी मुकल्लिदीन के इमाम हैं लिखते हैं कि हजरत फुक़हा अहनाफ इसको मकरूह भी कहते हैं और बिदअत भी, और दलील सिर्फ इतनी ही पेश करते हैं कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत सहाबा किराम और ताबीन से मनकूल नहीं है। और फिर सफ़ा नंबर 98 के ऊपर यही बात आगे लिखते हैं कि चूंकि ये काम हजरत सहाबा किराम और ताबीन से मनकूल नहीं, लिहाजा बिदअत है। मौलवी सरफराज खां सफदर गखड़वी के उसूल के मुताबिक ये काम बिदअत करार पाता है। और फिर ये भी वहाबिया दयाबना इस्माइलिया का उसूल है कि जो बिदअती है वो जहन्नमी कुत्ता है। तो अब वहाबी मुकल्लिदीन देवबंदियों के मुताबिक इमाम काबा खत्म कुरान के मौका पर इज्तिमाई दुआ करके बिदअत का मुर्तकिब करार पाता है। जो बंदा अपने ही वहाबी फिरके के मौलवियों के उसूलों और इबारात की रोशनी में बिदअती करार पाता है, जहन्नमी कुत्ता करार पाता है, तो क्या ऐसे इमाम के पीछे नमाज पढ़ सकते हैं? ये जरा सोचकर गौर व फिक्र के बाद हमें जवाब दीजिएगा। आप ही अपनी अदाओं पे खुद गौर करें, हम अर्ज करें तो शिकायत होगी।